Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. So today we will start a new chapter, that is chapter number 12, Electronic Spreadsheet. When we talk about spreadsheet, the things that comes to our mind, that is Excel. So in class 7 or in 8, we must have studied that how Excel work, what is the purpose of Excel, and how to work a kind of having basic purpose using the application like Excel. Now, we all are kind of familiar with the purpose or the reason behind the introduction of spreadsheet. This is an application which is used to store data in bulk volume. This is an application which is used to do the calculation with that volume of data. This is an application which is used to represent the data in graphical form. And this is the same application which is used to store the data, make the analysis of data. So like you can see in the very first four line of the chapter that how it is very important for a statistical analysis, long calculation and comparison between different data and at the same time the graphical representation of data using charts, graph and everything. So when we have a volume of data, when we have stored a kind of container of data or bulk volume of data, we need to store them, we need to do the calculation along with them, we need to have the analysis with them, and at the same time we need to go for graphical representation of data. So for all these purpose we have one single application in one single platform, that is we all know, that is spreadsheet. Normally when we talk about spreadsheet, we are kind of familiar with the MS Office application, that is Excel. But here in this chapter, we will talk about Calc, that is an application of OpenOffice. Like in the last chapter, we have discussed how to work on Writer in the form of word processor. Writer is another application of OpenOffice in the form of a word processor. Calc is another application of OpenOffice in the form of spreadsheet. Now again in the next two paragraph, it is being mentioned that how spreadsheet package is very important in our day-to-day life, whether it is we talk about analysis, calculation, comparison, or using graphical representation of data, because it is very much important to keep them organized, keep them in planning form, and in different organization it is used to generate the budget or making annual reports for different purpose and making the tax calculation. This is very simple day-to-day life examples are given here. I'm not talking about them, you're kind of familiar with these things. Now this is something very important: features of word processor, features of spreadsheet package. There are 5 features you can see over here. Let's talk about one by one. Bulk volume of data can be kept and handled in easier way. When we have volume of data, it is very easy to maintain these data with the help of spreadsheet. Complex and long calculation can be solved accurate and fastly. Many a time when these data are stored in a single platform, we need to go for calculation. We need to go for some analysis, complex calculation. And that is not something going to be happen with a simple manual word processor or simple other application. What a spreadsheet is having so many formula, so many function which is already available only for these calculation and analysis purpose. So long calculation is easily possible. Data can be exported or imported to other packages. मतलब आप कोई एक्सेल सीट में यानी स्प्रेडशीट में आप डेटा बना रहे हैं, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर, दूसरे एप्लीकेशन पे. इवन व्हेन वी एनालाइज द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 and 12, the results from the board comes in notepad, but that comes from the not in the form of notepad, but we have to put it in excel sheet. तो आप इस तरीके से किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट से. Data can be expressed in tabular and pictorial form. This is something very obvious. Pictorial form is basically the uses of graphs and chart. Then formula for calculation can be automatically applied to any data when the data value changes. Means अगर आप मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का ही डेटा मार्कशीट स्टोर कर रहे हैं, आपको सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स और परसेंटेज निकालना है. In that case you don't have to apply the formula in each and every row, in each and every student. You have to just introduce the formula in first student name, and the things can be easily applied to other range or other cell and other values. This is how the spreadsheet easily update the things from one cell to the another cell. We don't have to redo the same work again and again.
Like here it has been mentioned, the things is not very clear. It's that calc was the first, VisiCalc was the first, it's VISI, it's VISI. VisiCalc was the first spreadsheet package that was introduced in 1978. Later on, Lotus 123, then Qualtro, Pro Excel, Calc were also developing spreadsheet packages. So here we will talk about calc, how calc work. This get this displayed over here in the screen. आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हैजी दिख रहा होगा. Let's just open it without wasting any time कि ये calc का विंडो क्यों कैसे दिखता है, because we have to just work on calc only. And today in this session I will try to show you the different components of calc कि किस तरीके से अलग अलग options आपको दिखते हैं. और जैसे ये ओपन हुआ आप स्प्रेडशीट पर क्लिक कीजिए, this will come in the same form how it is being there in your page or in your book. So this is the window of calc. Normally the things are very common like other applications. The thing on the very top we have title bar. This you all can understand. This is menu bar, file, edit, view, insert. This is menu bar. Then we have standard toolbar. This is the option that we have over here, that is standard toolbar. Then these are our formatting toolbar. ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये सब formatting toolbar है. ये ऊपर वाला standard toolbar है, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स. नेम बॉक्स कंटेन द सेल एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल. नेम बॉक्स, देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके बुक में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको यहाँ से ना बताकर मैं आपको बुक में वन बाय वन करके ही डील करता हूँ. मैं इसको पैरेलली तो दोनों को ओपन नहीं कर पाऊंगा अभी, और से आपका स्क्रीन हाफ बाय हाफ करना होगा. So I would suggest you, if you have your book, please keep it in your front of you. पेज नंबर 192 में सबसे पहला दिया है वर्कबुक एंड वर्कशीट. देखिए, now I am going to discuss about the different components of calc window. किस तरह से किसको क्या कहते हैं, कौन कैसे काम करता है, वो हम लोग आज बेसिक देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. I agree that many of you are already familiar with the things, but still, since this is a part of the syllabus, we will go in the same flow. So workbook and worksheet, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, the things that we have in the screen, this is entire document is a workbook. ये एक वर्कबुक है, ठीक है. और इसके अंदर बहुत सारे सीट है. ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, आप चाहे तो और भी सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो आप जब भी देखिए इंसर्ट सीट, राइट क्लिक करने से आपको एक नया सीट ऐड हो जाएगा आफ्टर करंट सीट. Okay, so you can see sheet 4. So this is how you can have multiple sheet. So workbook contain multiple worksheet, and a worksheet is actually the working area. But when we go through the book definition, you will find that worksheet is the working area or the page in the screen, and workbook consists of worksheet. इसको मैं इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे कि एक वर्कबुक एक मेन फाइल है, एक मेन डॉक्यूमेंट है. जैसे ही आप स्प्रेडशीट यानी कैल्क ओपन करते हैं, तो जो इंटायर स्क्रीन पे आपको दिखता है वो पूरा का पूरा फाइल जो है एक वर्कबुक है, एक सिंगल बुक है. और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस है, जैसे स्क्रीन पे आपको अभी इतने सारे रोज एंड कॉलम दिख रहे हैं, तो ये एक वर्कशीट है. लेकिन आपको दूसरा शीट में काम करना है तो दूसरे शीट में जा सकते हैं. एक अलग पेज है, ये एक अलग पेज है, ये अलग पेज है. और इतने सारे पेज बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक, यानी अगर हम एक वर्कबुक एक बुक की तरह माने, तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने पेजेस होते हैं? 3 पेजेस, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3. So what I was talking about, that a workbook contain many worksheet, and a worksheet is actually the working area, the actual area in which we work. तो स्क्रीन पे जो आपको ये रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं. वर्कबुक एंड वर्कशीट ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी. इसको ये जो ऑप्शन है, ये जो सीट 1, सीट 2, सीट 3, दिस इज कॉल्ड सीट टैब, ठीक है. एंड देन वी हैव by default how many worksheet are there in a workbook? 3 worksheet. Now rows, we know what is rows. Rows is a set of horizontal boxes. ये इस तरह से जो boxes गया है, number of rectangular boxes, that is one after one, that is rows, ठीक है. तो इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप इजीली बोल सकते हैं a set of rectangular boxes in horizontal form. A set of rectangular boxes in horizontal form is rows. So there are how many rows in calc? Let's see. Control plus N, control plus down arrow key. There are 1 0 4 8 5 7 6. These many rows are there in calc application. Control plus top arrow key. I came to the first row. So rows are horizontal set of boxes. Okay. Then
कॉलम, कॉलम आर बेसिकली वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। जैसे ये आपका एक कॉलम हो गया, ठीक है, ये एक कॉलम हो गया। तो इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन अ वर्कशीट। कॉलम आर वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, दैट आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक के बगल में दूसरा कॉलम, उसके बगल में दूसरा कॉलम, एक के बगल में उसका कॉलम। और जब हम लोग रोज की बात करते हैं, these are horizontal set of boxes but they are on the top of each other, मतलब फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, इस तरीके से होता है। लेकिन जब कॉलम की बात करते हैं, दे आर वर्टिकल सेट्स ऑफ बॉक्सेस। फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, रोज आर हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ बॉक्सेस, कॉलम आर वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। रोज कितने हैं, 1048576, ठीक है, और कॉलम कितना है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। Last column name is AMG. I think it is 16,348th column. Okay. Now, last column is not not is 16,384. That is in Excel. Sorry, this column is 1024th column. AMJ is 1024th column. In MS Excel, we have 16,384th column, and that is named as XFD. ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देना है कि कॉलम नम आपका अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, और आपका रोज नंबर से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 के रोज जाएगा और कॉलम ABCD करके जाएगा। देन वी हैव सेल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेल पे ही सारा कुछ स्प्रेडशीट डिपेंडेंट है। ये जो एक एक बॉक्सेस देख रहे हैं, दिस इज सेल। हाउ इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड cell, and a cell having a unique address, and that cell address is formed by the combination of name of the column and number of row. So if I have clicked this particular cell, this is which particular column, column D, and this is in which particular row, row 4. So the cell address of this cell will be D4, and the address of this cell will be displayed over here. You can see over here, this is the name box. So name box display the cell address of selected cell. नेम बॉक्स डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ सेलेक्टेड सेल। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द सेल एड्रेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 15th कॉलम एंड 7th रो। तो आपको 15th कॉलम काउंट करना है, ए से लेकर 15th कौन सा लेटर है आपका, ABCDEFGHIJKLMNO। So O is my 15th letter and I have told 7th row. So O7 is the cell address of this particular cell, जो कि 15th कॉलम और 7th रो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सेल हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइटल बार। वी नो दिस इज टाइटल बार, द टॉप जो अनटाइटल्ड वन दिख रहा है ओपन ऑफिस, दिस इज टाइटल बार। इस पर अगर हम लोग कोई नाम से सेव करेंगे तो अनटाइटल्ड वन नहीं दिखेगा, उस नाम से दिखेगा। मेन्यू बार, दिस फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्म, टूल्स, दीज आर ऑल मेन्यू बार। Then we have standard toolbar. When we talk about standard toolbar, this is your standard toolbar. ठीक है, yeah, the first row is called standard toolbar. Then we have formatting toolbar. Then this second row, this B, bold, italic, underline, alignment वगैरह का जो options है, this is your formatting toolbar. Then we have formula bar. This area is called formula bar. Like if I am writing over here is equal to sum, ठीक है, मान ले कुछ भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने अभी ऐसे डेमो दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, एक नॉर्मल बताएंगे कैसे फॉर्मूला। तो देखिए मैंने जो जो आपको टाइप किया आपके सेल पे, वो आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, जहाँ पर मेरा अभी पॉइंटर है, इनपुट लाइन करके जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर में, ठीक। तो एमएस एक्सेल में इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, इसको कैल्क में हम लोग बोल रहे हैं इनपुट लाइन। तो इसको यहाँ पर भी फॉर्मूला बार बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज फॉर्मूला बार, यू कैन सिंपली राइट फॉर्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेल। जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला ही दिखाएगा, जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं, सॉरी, जैसे हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, तो आपको अपना नाम भी दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप किसी सेल में कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं तो वो वैल्यू आपको फॉर्मूला बार में दिखता है। तो दिमाग में ये चीज क्लियर रखना है, बहुत बार पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल एंड फॉर्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल।
ठीक है, उस सेल का जो कंटेंट है वो दिखाएगा। जैसे अभी मेरा इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो कंटेंट यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, इस सेल पे जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस सेल का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार में। देन we have cell pointer. Cell pointer is basically the active cell in the worksheet is known as cell pointer. मतलब आपका अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग सेल को सिलेक्ट करके रखते हो। जैसे अभी फिलहाल मैं कुछ मान लीजिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना पॉइंटर रख रहा हूँ, तो ये सॉरी, जैसे अभी मेरा कोई भी कहीं पर भी मेरा सेल सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा, दिस वाज द सेल लास्ट सेलेक्टेड। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि आप जब भी स्प्रेडशीट के एक वर्कशीट पे काम कर रहे हो, तो एट ए टाइम आप एक सिंगल वर्कशीट सेल को सिलेक्ट करके रखते हो, सो दैट सेल पे ही आपका पॉइंटर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे देखिए इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है तो पॉइंटर रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी यहाँ पर, अभी इस सेल को सिलेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका हाईलाइट होकर रहा है। तो इस सिलेक्टेड सेल को, जो एक्टिव सेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर इज बेसिकली रेफर्स टू द सिलेक्टेड सेल और द एक्टिव सेल। ठीक है, सेल और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैंने इनको एक्टिव नहीं किया, यानी इनको सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे ये एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो ये हो गया अभी आपका सेल पॉइंटर। तो सेल पॉइंटर को अगर आपको डिफाइन करना पड़े, यू कैन सिंपली से द एक्टिव सेल एट ए टाइम और द सेलेक्टेड सेल एट ए टाइम इज नोन एज सेल पॉइंटर। सेल एड्रेस मैंने आपको बताया, सेल एड्रेस कैसे बनता है। सेल एड्रेस कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉलम अल्फाबेट्स के हिसाब से होता है, रो नंबर्स के हिसाब से होता है। देन वी हैव नेम बॉक्स, वो भी मैंने आपको बताया, दिस इज द एरिया व्हिच इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स करता क्या है, इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल। जो सेल सेलेक्टेड है, जहां पर सेल पॉइंटर है, उस सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखेगा। और फॉर्मूला बार में क्या दिखता है, इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेल। सीट टैब, ये भी मैंने आपको शुरू में ही बताया, दिस सीट 1, सीट 2, सीट 3, दिस इज द एरिया, दिस इज कॉल्ड सीट टैब। देन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, मैं अपने स्क्रीन को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, और अगर मुझे टॉप टू बॉटम मूव करना हो तो मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करूंगा। दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस फॉर एवरीवन। तो इतने सारी चीजें हैं एक कैल्क विंडो में, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, सेल पॉइंटर, सॉरी सेल स्टेट, सीट टैब, रोज, कॉलम, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, इन सभी चीजों को आपको समझना है। दो चीज मेजर जो आपको समझना जरा जरूरी है कि सेल क्या है। सेल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। कैसे बनता है, एक इंटरसेक्शन से। किसके इंटरसेक्शन से, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। जब दोनों मिलते हैं तो एक जो फॉर्मूला, एक फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इस सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा। वो एड्रेस फॉर्म कैसे होगा, उसके कॉलम नेम और रो के नंबर से। अगर ये डी है और इसका रो 8 है तो इसका सेल एड्रेस आपको डी यहाँ पर दिख रहा होगा, D8। ठीक है, तो D8 जहाँ पर दिख रहा है उस एरिया को नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स का काम क्या है, इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। उसी के ठीक बगल में आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है, इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जैसे मैंने अभी इस सेल को सिलेक्ट किया है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इस सेल को सिलेक्ट किया है मैंने, इसका जो भी कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है। तो these are few important things that you need to understand. Now next we have types of data. ठीक है, so let's come to the page. बस यही टॉपिक आपका लास्ट है आज का, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आई थिंक दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा, आपने डेटाबेस में क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। डेटा टाइप में टेक्स्ट, न्यूमेरिक, यस नो, ऑटो नंबर, डेट एंड टाइम। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप आपने पढ़ा है एमएस एक्सेस में। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप किन तरह के डेटा उसको एंटर कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट पे। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन एंटर। वी कैन एंटर न्यूमेरिक डेटा, वी कैन एंटर अल्फा न्यूमेरिक डेटा मीन्स टेक्स्ट डेटा, वी कैन एंटर डेट एंड टाइम, एंड वी कैन एंटर एनी फॉर्मूला। तो न्यूमेरिक डेटा, मान लीजिए नॉर्मल मार्क्स एंटर करना है, दैट इज एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ 0 to 9, कोई डेसिमल नंबर हो, हर तरह के नंबर्स को हम लोग न्यूमेरिक डेटा की कैटेगरी में डालते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा का पर्पस बेसिकली क्या है कि फॉर्मूला अगर अप्लाई हुआ है तो कैलकुलेशन अगर करना है, नॉर्मल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो वो न्यूमेरिक डेटा पे ही कैलकुलेशन होगा। तो जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। लेकिन जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो एज ए ऑपरेंड रिएक्ट करता है। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब मैंने
मेरा कहने का यही मतलब है कि न्यूमेरिक डेटा इज बेसिक वन ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू एंटर और विच इज यूज्ड इन ए स्प्रेडशीट। अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा टाइप, जैसे किसी का नाम एंटर करना हो, किसी का एड्रेस एंटर करना हो, किसी का कोई जेंडर एंटर करना हो, या कोई भी कॉलम हो जिसमें आप अल्फाबेटिक्स का यूज कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहे हो, अल्फाबेट और नंबर दोनों का यूज कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग उसको अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा टाइप के कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। सो टेक्स्ट डेटा टाइप, इसका आप लोगों ने देखा था डेटाबेस में कि टेक्स्ट डेटा टाइप इज बेसिकली यूज्ड टू enter any string value, any sort of character, maybe a name, maybe address, जिसमें आपको कोई भी तरह का स्पेस हो, कैरेक्टर हो, कोई नंबर हो, कोई अल्फाबेट हो, सब तरह की चीज़ों का आप कंसिडर कर सकते हैं। सबका मिक्स को हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप बोलते हैं। डेट एंड टाइम, कोई कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, तो इस तरह का कोई टेबल बना रहे हैं जिसमें हमें डेट से रिलेटेड वैल्यूज डालने हैं, तो हम लोग डेट एंड टाइम के कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं। फॉर्मूला इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग आगे देखेंगे। फॉर्मूला इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन दैट हेल्प्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। मतलब एक फॉर्मूला है क्या, एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑपरेंड, ऑपरेटर, सेल एड्रेस, सेल रेंज। ठीक है, एक फॉर्मूला सिर्फ सेल एड्रेस से नहीं बन सकता है। फॉर्मूला के लिए हमें फंक्शन भी चाहिए हो सकता है, एक फॉर्मूला के लिए ऑपरेटर भी चाहिए हो सकता है, फॉर्मूला के लिए ऑपरेंड भी चाहिए हो सकता है, सेल एड्रेस भी होना चाहिए हो सकता है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग डेटा को। तो जब एक रिपोर्ट जनरेट करना होता है तो उस केस में हमें फॉर्मूला की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। But one thing that you have to remember in your mind, or keep it in your mind, that a formula is always begin with an equal to. फॉर्मूला हमेशा एक इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को डिजाइन करते हैं। कैसे कैसे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, काम कैसे करता है, ये सब चीजें आपको आगे के क्लासेस में पता चलेंगी, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट वी यूज एंड वी विल हैव अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली कि कैसे डेटा है मेरे पास, उसमें कैसा फॉर्मूला लगाए, उसको किस दूसरे तरीके से कैसे सेम फॉर्मूला को लगा सकते हैं। सारी कुछ चीज़ें आपको एक एक करके दिखाई जाएंगी। और इसके बाद है आपका नॉर्मल वर्किंग, कैसे एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो हम लोग उसको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आई होप द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे इज क्लियर टू यू एंड whatever assignments that we have to give, we are giving it to you, or you will get it in Google Classroom. And thank you everyone. Hope everything is fine and stay home and stay safe and stay happy.